जय गुरुदेव। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट है, जैसे मेल में टेस्टिस थे, यहाँ पर ओवरीज हैं। तो ओवरीज में जो एग मैच्योर हो रहे हैं वो फाइनली किस तरीके से फर्टिलाइज हो रहे हैं, कहाँ पे आगे जाके डेवलप हो रहे हैं, जाइगोट फॉर्मेशन कहाँ है, जाइगोट किस तरह से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो फिर किस तरीके से एक बेबी में कन्वर्ट होगा, बेबी की डिलीवरी कैसे होगी, ये सारे जो हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर, साथ के साथ जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन्हीं को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे इन अ सिंपल वे। सो आई वांट यू टू take it very seriously because this is a very important topic. Many questions in board come from this topic. Pay attention. Okay, now let's start female reproductive system. In female reproductive system, basically the main female reproductive system are the ovaries. There are one pair of ovaries, that means there are two ovaries that are present in the female reproductive system. In the ovaries, what is the main function that the ovaries are doing? They are producing the egg, as well as they are also producing the female hormone. What are the female hormone? Estrogen and progesterone. Now, what is the function of both these hormones? So, estrogen, that is mainly responsible for all the female characteristics that arise at the time of puberty. That means जो भी फीमेल की बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, the pubic hair, the hair under the armpits, the curves in the body, the voice becomes shrill. These all characteristics are developed due to the presence of estrogen. Then the second is progesterone. Progesterone hormone take action while pregnancy. It prepares the female body for the pregnancy. So basically the ovary is doing two functions. First, it is producing the egg that will give birth to that is the female gamete that will give birth to the baby, and the other that is helping in this process, that are the two hormone, estrogen and progesterone. So now see that the ovary, it produces the egg and it has to reach the oviduct. This is the whole oviduct. This is the oviduct that is taking the egg from the ovary and it is taking it to the uterus. So the tube that takes the egg from the ovary to the uterus, that is known as oviduct. It is nearly 10 to 12 centimeter, and the ovaries, they are 2 to 4 centimeter in length. So the oviduct will take the egg from the ovary to the uterus. यहाँ से ये ओवरी से जो एग प्रोड्यूस हुआ, जो लगभग हर मंथ में एक एग मैच्योर होता है, एक एग का ओव्यूलेशन होता है, वो एग जो है वो फाइनली ओवरी से रिलीज होगा, और उसको कौन लेके जा रहा है? द ओविडक्ट। क्योंकि ये एग आपको मालूम है इट इज़ स्टेशनरी, दैट इज़ इमोबाइल, वो मूव खुद नहीं कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? फिम्ब्राई। ये ओविडक्ट के पार्ट हैं तीन, पहले इनको देख लेते हैं। ओविडक्ट के तीन पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग पॉइंट है जिसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं, फिब्राई। जो फिम्ब्राइज हैं ये इस तरह की फिंगर्स हैं जो बेसिकली जो एग रिलीज हुआ उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करके, और वो उसको कहीं और ना चला जाए, एग कहीं और ड्रॉप ना हो जाए, तो उस एग को होल्ड करके वो क्या करते हैं? लगातार कॉन्ट्रैक्शन करके एग को ऊपर खींचते हैं। तो ये जो काम है ये कौन कर रहे हैं? द फिम्ब्राई आर डूइंग दिस फंक्शन। And which part the fimbriae is? That is the part of a infundibulum. ये infundibulum का पार्ट है। अब infundibulum से फिर ये आगे ट्रैवल किया, it goes into the ampulla. Ampulla is the middle coiled part. जो coiled part है ट्यूब का, वो कौन सा है? ampulla है। और ampulla से last part, ये वाला जो पार्ट है जो फाइनली यूट्रस में जुड़ेगा, that is called isthmus.
तो अगर हम फिर से इसको रिवाइज करें, ओविडक्ट के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला कौन सा है? इन्फंडिबुलम, उसमें फिम्ब्रियाई प्रेजेंट है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? एम्पुला, और थर्ड पार्ट है इस्थमस। ये तीनों पार्ट मिलकर बनाते हैं ओविडक्ट को। कितनी लॉन्ग है? लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब ये जो एग है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, द फर्टिलाइजेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस इनसाइड द ओविडक्ट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है वाई सो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि ओविडक्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एग है उसकी लाइफ है लगभग 2 डेज़, अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज़ उसकी लाइफ है, 48 आवर्स। और जो स्पर्म्स हैं उनकी लाइफ उससे भी कम है, लगभग 1 डे, दैट मीन्स 24 आवर्स टू सम मोर आवर्स, दैट मीन्स नॉट कंप्लीट 2 डेज़ ऑल्सो। सो व्हेन द sperms enter through the vagina, now they have to reach towards the egg, and the sperms as well as the egg, they both have short life. So if the egg, it takes nearly 2 days to reaches over here, the egg will take 2 days to reach to the uterus. egg को 10 से 12 सेंटीमीटर की जो ओविडक्ट है उसमें, क्योंकि वो स्टेशनरी है, खुद मूव नहीं कर सकता है, तो एग को धीरे धीरे क्योंकि पुश किया जा रहा है उस वेव लाइक मोशन की वजह से, तो वो जो पुश हो रहा है लगातार, उससे उसको 2 दिन लग जाते हैं अपने ओवरी से लेकर यूट्रस तक पहुंचने में। और ये 2 दिन के अंदर ही उसका जो एक तरह से डिग्रेड होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, एग मरने लगता है। तो अगर इन 2 दिनों के अंदर फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म वहाँ पहुँच गया, तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर एग यहाँ पहुँच गया यूट्रस में, तो इसका मतलब वो पहले से ही क्या हो चुका है? वो पहले से ही खराब हो चुका है, वो डेड हो चुका है। तो अब जो डेड हो चुका है, डिकम्पोज हो रहा है, ऐसे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो जो स्पर्म्स हैं उनको यहाँ पर पहुँच के ही फर्टिलाइज करना होगा। दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस इनसाइड द ओविडक्ट। अच्छा, अब ये एग जो फर्टिलाइज हुआ, सपोज द स्पर्म दैट आर मूविंग फ्रॉम हेयर, वन ऑफ द स्पर्म रीचेज ओवर हेयर। एक स्पर्म या बहुत सारे, लेकिन कोई एक ही जो है वो सबसे पहले फर्टिलाइज करेगा एग को। तो एक स्पर्म जो है वो यहाँ पे पहुँच गया और उसने उस एग को फर्टिलाइज कर दिया। जब एग को फर्टिलाइज करा तो उसका वो किस में कन्वर्ट हो गया? 2 गैमीट्स मिल गए आपस में, तो N+N, दैट मीन्स फीमेल गैमीट और मेल गैमीट जब आपस में फ्यूज हुए तो दे विल कन्वर्ट इनटू जाइगोट। कौन सा प्रोसेस हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, सिनगैमी हो गया। तो फाइनली द प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फाइनली दिस हैज कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। अब ये क्या बन गया? यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट धीरे धीरे पहुँचेगा टुवर्ड्स द यूट्रस और इसके अंदर भी डिवीजन शुरू हो जाएगा। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट के अंदर डिवीजन शुरू हो जाएंगे। जो डिवीजन होंगे वो कैसे होंगे? दे विल बी माइटोटिक। माइटोटिक क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n है। दैट मीन्स अगर ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं तो 46 है यहाँ पर। अब 46 को हमें आगे उसको डिवाइड नहीं करना है, हमें 46 ही हर सेल में अपने क्या चाहिए? हमें जो नंबर ऑफ सेट है क्रोमोसोम्स का वो हमें उतना ही चाहिए। तो अब माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूसली होंगे। जो माइटोटिक डिवीजन है वो उसको पहले 2 बार 2 सेल्स में, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में, फिर 32 में, इस तरह से कंटिन्यूसली उसको डिवाइड करते रहेंगे और फिर उसके अंदर ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का। ये सारा भी हम डिटेल में नेक्स्ट उसमें पार्ट में देखेंगे। पर पहले हमें ये समझना है कि जाइगोट जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचेगा। लगभग जब वो 16 सेल्स का होता है उस स्टेज में वो यूट्रस के पास पहुंच जाता है। ठीक है, ब्लास्टोसाइट्स कहते हैं उसे। अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी हम यहाँ पहुँचते हैं कि यहाँ पर ये जो जाइगोट है ये यहाँ पर पहुँच चुका है। अब जाइगोट हमारा जब यूट्रस में पहुँचेगा तो यूट्रस का क्या काम है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूट्रस? यूट्रस का काम है उसको नरिशमेंट देना, उसको इम्प्लांट करके सारी जो नेसेसिटी उसकी है, जो उसकी ग्रोथ के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए, वो सब उसको प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर पहले अब हम देखते हैं कि जो यूट्रस है ये यूट्रस की कौन कौन सी लेयर्स हैं और ये क्या काम कर रही हैं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे मैं कन्वे करूँगी आपको कि जिस एक तरह से हम कह सकते हैं जिन मसल से या जिन फाइबर से, जिन कनेक्टिव टिश्यू से जो ओवरी है वो कनेक्टेड है विद द यूट्रस,
उनको हम कहते हैं मेसोवेरियम। वो जो ये क्वेश्चन आ जाता है कितनी बार 1 मार्क्स में कि कौन से टिश्यूज हैं, तो दे आर मेसोवेरियम। मेसोवेरियम जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं द ओवरी विद द यूट्रस। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बीच में मसल्स भी हैं जो इनको कनेक्ट कर रही हैं, ओवरी को और फेलोपियन ट्यूब को कनेक्ट कर रही है। फेलोपियन ट्यूब हम ओविडक्ट को ही बोलते हैं। तो जो यूट्रस और इनके बीच में, ओविडक्ट के बीच में जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं मेसोमेट्रियम। दे आर कॉल्ड मेसोमेट्रियम। मेसोमेट्रियम ये वाली मसल्स हैं, दीज आर मेसोमेट्रियम, ठीक है। और ये जो मसल है, ये जो फाइबर है, दे आर मेसोवेरियम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, हम आते हैं वापस इस पे, जो हमारा जो यूट्रस है उसके अंदर कौन कौन सी उसकी जो मसल्स हैं उनमें कौन कौन सी लेयर्स हैं और वो हर लेयर क्या काम कर रही है। तो जो यूट्रस है उसमें 3 लेयर्स हैं। उसमें पहली लेयर है हमारी जो सबसे बाहर है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर है, प्रोटेक्शन के लिए है, एक तरह से उसको शेप देने के लिए है। उसके बाद सेकेंड लेयर है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये वाली लेयर को हमने कहा, ये मायोमेट्रियम है। ये मायोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस समय डिलीवरी होती है, डिलीवरी को हम पर्ट्यूशन कहते हैं, जिस समय पर्ट्यूशन होता है, बेबी जो है वो बाहर डिलीवर होने के लिए तैयार होता है, मैच्योर होता है, उस समय बेबी तो खुद अपने आप को पुश करता ही है, लेकिन साथ के साथ जो ये वाली मसल्स हैं मायोमेट्रियम जो है, यही बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं हमारी बॉडी की। ये सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं ऐसी मसल्स हैं मायोमेट्रियम। यूट्रस की मायोमेट्रियम जो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट और लगातार रिलैक्स करेंगी और जो बेबी है उसको बाहर की तरफ पुश करेंगी। थर्ड जो उसकी लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है वो इसका मतलब इनर मोस्ट लेयर है। यूट्रस की तरफ से अगर हम देखें तो सबसे अंदर वाली लेयर है। इसी के अंदर थिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, इसी के ऊपर म्यूकस का भी फॉर्मेशन होता है। तो जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, दैट मीन्स कि अगर ये एग जो है, ये जो एग था ये जाइगोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जो एग था ये जाइगोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, दिस इज द एग। अब जब ये यहाँ पहुँचा तो ये डिकम्पोज हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है। तो अब जो अंदर पूरी जो एंडोमेट्रियम थी उसमें थिक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अपने आप को तैयार कर लिया था, किसके लिए, जाइगोट के लिए, कि जाइगोट को उन्हें लगातार नरिशमेंट देना है, ब्लड सप्लाई देना है। लेकिन अब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो अब ये जो एग है ये डिकम्पोज हो चुका है। अब अगले मंथ दूसरे एग की तैयारी करनी है, क्या पता वो फर्टिलाइज हो जाए। तो इसके लिए जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की, अब ये शेड हो जाएगी, इट विल शेड इटसेल्फ। जब वो शेड करेगी तो बहुत सारा ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज भी साथ में ब्लड शेड होगा। ये जो एग है जो डिकम्पोज हो चुका है ये भी शेड होगा, साथ में म्यूकस की लेयर भी शेड होगी। और ये सब जो शेड होता है इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। तो हर 28 डेज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसके शेड की वजह से हो रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं। जो मेंस्ट्रुअल जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस में 3 लेयर्स हैं उसके, कौन कौन सी, अगर हम सबसे अंदर से बात करते हैं तो एंडोमेट्रियम, फिर उसके बाद जो सेकंड है मायोमेट्रियम, और मिडिल को हमने मायोमेट्रियम कहा, और पेरी मतलब जो पेरीमीटर बनाता है दैट इज पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो अगर हम बाहर की लेयर करें तो उसका काम सिर्फ उसका एक तरह से उसको प्रॉपर शेप करना, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर देना है, प्रोटेक्शन देना है। जो इनर लेयर है बीच वाली, उसका नाम है मायोमेट्रियम, उसका काम कॉन्ट्रैक्शन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द पर्ट्यूशन और द डिलीवरी। और जो सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम, उसका फंक्शन है टू regulate the menstrual cycle, or during the menstrual cycle that is shed with the egg to just clean up the uterus, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि यूट्रस के बाद एक कैनाल जैसा हमें दिख रहा है, ये जो नैरो पॉइंट है जो यूट्रस को और वेजाइना को कनेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड द सर्विक्स। तो बेसिकली ये यूट्रस है और यूट्रस और ये नीचे वेजाइना है। वेजाइना मतलब जैसे पेनिस है इन द मेल, जो मेल कॉपुलेटिंग ऑर्गन है, ऐसे ही यहाँ पर फीमेल में जो फीमेल कॉपुलेटिंग ऑर्गन है, जो आउटर ऑर्गन है, उसको हमने क्या कहा, दैट इज कॉल्ड द वेजाइना। और ये इन दोनों के बीच में एक नैरो पॉइंट है सर्विक्स। ये नैरो होना जरूरी है क्योंकि अगर बेबी इम्प्लांट होता है तो अगर ये ओपन होगा तो क्या होगा, बेबी जो है वो स्किप कर सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये नैरो एंड है, इसको नॉर्मली म्यूकस से जब अगर यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन होता है तो ये जो है इसको म्यूकस के द्वारा इसको
क्लोज कर दिया जाता है ताकि बेबी किसी भी तरीके से इमेच्योर डिलीवर ना हो। तो यहाँ पर ये जो नैरो एंड है इसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स, और इसको कैनाल को भी हम सर्विकल कैनाल कहते हैं, सर्विकल कैनाल, या फिर हमने उसका दूसरा नाम क्या है, बर्थ कैनाल, जिसके थ्रू बेबी का बर्थ होगा। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा, हमने सारे ऑर्गन्स को। एक बार हम अब स्टार्टिंग से देखते हैं। एग यहाँ प्रोड्यूस हुआ, किसमें एग प्रोड्यूस हुआ, ओवरी में। ओवरी में एग रिलीज हुआ, पहले फिम्ब्राई ने, फिम्ब्राई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उन्होंने उसको होल्ड किया। फिम्ब्राई किसका पार्ट है, दे आर द पार्ट ऑफ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से वो गया एम्पुला में, एम्पुला से दे रीचेस द इस्थमस। ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये ओविडक्ट के पार्ट हैं। इट रीचेस द यूट्रस, यूट्रस में पहुंचा। अगर वो फर्टिलाइज हो चुका है तो यहाँ इम्प्लांट हो गया यूट्रस में। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम के साथ रिलीज हो गया, शेड हो गया, जिसको हमने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हमने उसमें टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम। इन द नेक्स्ट पार्ट विद नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ द डिफरेंट स्टेजेस टेक प्लेस इन द ओवरी दैट अराइज और दैट रिजल्ट इन ओव्यूलेशन और रिलीज ऑफ एग। एग रिलीज होने से पहले किस तरीके से एग का मैच्योरेशन हो रहा है, कैसे ओव्यूलेशन हो रहा है, इसी को हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं।